Hi friends, welcome to DM classes. We will start with our 7th chapter of Maths Part 2 Geometry, that is mensuration. Let us start some formulae of different solid figures. First, cuboid. First formula, lateral surface area equal to 2h into L plus B. Second, total surface area equal to 2 into LB plus BH plus HL. Third, volume equal to L into B into H. And fourth, length of diagonal equal to root L square plus B square plus H square. Second, cube. First, lateral surface area equal to 4L square. Second, total surface area equal to 6L square. Third, volume equal to L cube. And fourth, length of diagonal equal to root 3 into L. Third, cylinder. First, curved surface area equal to 2 pi RH. Second, total surface area equal to 2 pi r into r plus h. Third, volume equal to pi r square h. And fourth, area of base equal to pi r square. Fourth, cone. First, slant height L equal to root h square plus r square. Second, curved surface area equal to pi r L. Third, total surface area equal to pi r into r plus L. Fourth, volume equal to 1 by 3 into pi r square h. And fifth, area of base equal to pi r square. Fifth, sphere. Surface area equal to 4 pi r square. Volume equal to 4 by 3 pi r cube. Note for sphere, total surface area equal to curved surface area. Sixth, hemisphere. First, curved surface area equal to 2 pi r square. Second, total surface area of a solid hemisphere equal to 3 pi r square. Third, volume equal to 2 by 3 pi r cube. Note for hemisphere, height equal to radius. Let us start practice set 7.1. Question number first. Find the value of cone if the radius of its base is 1.5 centimeter and its perpendicular height is 5 centimeter. Given for the cone radius r equal to 1.5 centimeter and perpendicular height is 5 centimeter. To find volume of cone, volume of the cone. Solution. Volume of cone equal to 1 by 3 pi r square h equal to 1 by 3 into pi. पाई की वैल्यू होती है 22 डिवाइडेड बाय 7 एंड 3.14. तो यहाँ पर हम 22 डिवाइडेड बाय 7 यूज़ कर रहे हैं. आर इक्वल टू 1.5 मीन्स 1.5 स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 5 इक्वल टू 1 by 3 into 22 divided by 7 into 1.5 square means 1.5 into 1.5 into 5 equal to 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. तो
तो 1.5 है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0.5। Therefore 22 divided by 7 into 0.5 into 1.5 into 5. 22 into 0.5 into 1.5 into 5 means 82.5 divided by 7. 82.5 divided by 7 equal to 11.785 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम की यूनिट्स को हमेशा सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब से ही डिनोट किया जाता है। मतलब हमें मीटर या सेंटीमीटर जो भी यूनिट है, यूनिट के ऊपर हमें क्यूब लगाना होता है। अगर हमें सरफेस एरिया या एरिया फाइंड करने को कहा गया होता तो एरिया के लिए हम हमेशा स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई है 11.785। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ी वैल्यू जब भी होती है तो हम इसकी एक आगे वाले नंबर को एक बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू 11.79 के लगभग हो जाएगी। द अप्रॉक्सीमेट 11.79 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। देयरफॉर the volume of the cone is 11.79 centimeter cube. Answer. Question number 2. Find the value of a sphere of diameter 6 centimeter and pi equal to 3.14. Given for the sphere diameter D equal to 6 centimeter to find volume of a sphere. सॉल्यूशन। हमें यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर मीन्स डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, लेकिन हमें यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। तो रेडियस हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 मीन्स डी बाय 2। हमारे पास डी की वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। तब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 इंटू, यहाँ पर हमें पाई की वैल्यू दी हुई है 3.1, तो हमें यही वैल्यू रखना है 3.14 इंटू आर क्यूब। आर क्यूब मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 से 3 कैंसल। तब हमारे पास यहाँ पर वैल्यू बचेगी 4 इंटू 3.14 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 इंटू 3.14 इक्वल टू 36 इंटू 3.14 इक्वल टू 113.04 सेंटीमीटर क्यूब। Therefore, the volume of the sphere is
113.04 centimeter cube. Answer. Question number 3. Find the total surface area of a cylinder if the radius of its base is 5 centimeter and height is 40 centimeter. Pi equal to 3.14. Given for the cylinder radius r equal to 5 centimeter and height h equal to 40 centimeter. To find total surface area of the cylinder, solution. Total surface area of cylinder equal to 2 pi r इंटू आर प्लस एच. बस अब हमें यहाँ पर इस फॉर्मूले में रेडियस एंड हाइट इनकी वैल्यू रखना है और सॉल्व करना है. तो 2 इंटू पाई इक्वल टू 3.14 इंटू आर इक्वल टू 5 इंटू आर प्लस एच मीन्स 5 प्लस 40 इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 5 plus 40 equal to 45 equal to 45 to the 90 into 5 into 3.14 equal to 90 into 5 into 3.14 equal to 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पर हमें एरिया फाइंड करने के लिए कहा गया था, इसलिए हमने यूनिट्स सेंटीमीटर स्क्वायर यूज़ किया है. Therefore, the total surface area of the cylinder is 1413 centimeter square. Answer. Question number 4. Find the surface area of a sphere of radius 7 centimeter. Given for the sphere radius r equal to 7 centimeter, to find surface area of the sphere. Solution.
surface area of sphere equal to 4 pi r square इक्वल टू 4 इंटू पाई की वैल्यू हमें यहाँ पर कोई भी गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर पाई की वैल्यू यूज़ करेंगे 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7 से 7 कैंसल इक्वल टू 4 इंटू 22 इंटू 7 इक्वल टू 22 इंटू 4 इक्वल टू 88 इंटू 7 इक्वल टू 88 इंटू 7 इक्वल टू 616 centimeter square. Therefore, the surface area of the sphere is 616 centimeter square. Answer. Question number 5. The dimension of a cuboid are 44 centimeter, 21 centimeter, 12 centimeter. It is melted and a cone of height 24 centimeter is made. Find the radius of its base. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्यूबॉइड के डायमेंशन दिए हुए हैं 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर और बोला है कि इट इज़ मेल्टेड एंड अ कॉन ऑफ हाइट इज़ 24 सेंटीमीटर। मतलब इसे मेल्ट करके एक कोन बनाया गया है जिसकी हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर हाइट है। तो हमें फाइंड करना है रेडियस। गिवन for the cuboid length L equal to 44 centimeter, breadth B equal to 21 centimeter and height H equal to 12 centimeter. For the cone, height H equal to 24 centimeter. To find radius of base of the cone means R. Solution. Volume of cuboid equal to L into B into H equal to L equal to 44 into B equal to 21 into H equal to 12 centimeter cube. Volume of cone equal to 1 by 3 into pi r square H equal to 1 by 3
इंटू पाई इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर हमें फाइंड करना है, इंटू एच। एच की वैल्यू हमारे पास 24 सेंटीमीटर क्यूब। सिंस the cuboid is melted to from a cone। यहाँ पर हमें क्यूबॉइड को मेल्ट करके कॉन के फॉर्म में चेंज करना है। तो हमने यहाँ पर दोनों के वॉल्यूम को फॉर्मूला लगा के वैल्यू रखी थी, यही दोनों का फॉर्मूला हम इक्वल रखेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन। Therefore, volume of cuboid equal to 44 into 21 equal to 12. 44 into 21 equal to 12 equal to volume of cone equal to 1/3 into 22/7 into r square into 24। अब हमें आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम आर स्क्वायर को 61 लेकर आ जाते हैं, बाकी सारी वैल्यू 61 ले आते हैं, जिससे हमारी आर की वैल्यू आसानी से फाइंड की जा सके। 44 इंटू 21 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7। आर स्क्वायर के डिवाइड में है तो 3 इंटू 7 भी यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएंगे, एंड 22 इंटू 24 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएंगे। तो अब हमें यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए बस इसे सॉल्व करने की ज़रूरत है। 21 1 जा 21, 21 2 जा 44, 12 1 जा 4, 12, 12 2 जा 24, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। हमारे पास क्या वैल्यू बची है? 21 इंटू 3 7 जा 21। Therefore, r square equal to 21 into 21 means 21 square taking square root of both sides, root r square equal to 21 square, root square से root cancel of both sides, therefore r equal to 21 centimeter। therefore the radius of the base of the cone is 21 centimeter। Answer. Question number 6. Observe the measures of parts in the given figures. How many jugs of water can the cylindrical pot hold? Ten centimeter,
3.5 centimeter. Conical water jug. Seven centimeter and 10 centimeter. This is cylindrical water pot. Given for the conical water jug, radius r equal to 3.5 centimeter, height h equal to 10 centimeter, for the cylindrical water pot, radius r equal to 7 centimeter, height h equal to 10 centimeter. To find number of jugs of water the cylindrical pot can hold. Solution. Volume of कॉनिकल जग. कॉनिकल जग मीन्स हमें यहाँ पर कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है, तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 इंटू पाई. पाई की वैल्यू हम पाई एज इट इज़ लिख रहे हैं इंटू आर स्क्वायर. आर की वैल्यू हमारे पास 3.5 स्क्वायर इंटू एच मीन्स 10 इक्वल टू 1/3 इंटू 3.5 स्क्वायर इंटू 10 पाई सेंटीमीटर क्यूब. Now volume of cylindrical pot equal to pi r square h equal to pi into r square means 7 square into h equal to 10 equal to 7 square means 49 into 10 pi सेंटीमीटर क्यूब. अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ जग्स. तो नंबर ऑफ जग्स के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ही वॉल्यूम को डिवाइड में लिखेंगे. वॉल्यूम ऑफ cylindrical pot divided by volume of conical jug equal to volume of cylindrical pot equal to 49 into 10 pi centimeter cube
divided by volume of conical jug equal to 1/3 into 3.5 square into 10 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। अब हमारे पास वैल्यू बची है 49 डिवाइडेड बाय 1/3 इंटू 3.5 स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख सकती हूँ 49 इंटू 3, क्योंकि 3 यहाँ पर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में चला जाएगा, और यहाँ पर डिवाइड में बचेगा 3.5 इंटू 3.5 इक्वल टू 49 इंटू 3 इंटू 1, 3.5 इंटू 3.5। यहाँ पर मैंने 1 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर हमें पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट हटाने के बाद यहाँ पर हम 0 बढ़ाएंगे। ये 0 बढ़ा दीजिए, यहाँ पर कितना हो गया 100। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 0, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। हमारे पास यहाँ पर कितनी वैल्यू बची, 3 इंटू 4 इक्वल टू वैल्यू बची है हमारी 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। 3 इंटू 4 मीन्स 12। देयरफॉर the cylindrical pot can hold 12 jugs of water. Answer. Question number 7. A cylinder and a cone have equal bases. The height of the cylinder is 3 centimeter and the area of its base is 100 centimeter square. The cone is placed upon the cylinder. Volume of the solid figure so formed is 500 centimeter cube. Find the total height of the figure. अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना होगा। तो अ सिलेंडर एंड अ कॉन हैव इक्वल बेसेस, मतलब एक सिलेंडर है और एक कॉन है जो कि एक ही बेस पर हैं। यह हमारा सिलेंडर एंड ये हो गया कॉन। देखिए ये सिलेंडर एंड कॉन दोनों का एक ही बेस है ये वाला। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। जो सिलेंडर की हाइट है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर की है, मीन्स ये 3 सेंटीमीटर है। एंड द एरिया ऑफ द बेस इज 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। द cone is placed upon the cylinder. Volume of the solid figures so formed is 500 centimeter cube. तो find the total height of the figure, मतलब हमें इसकी टोटल हाइट फाइंड करना है।
तो हम इसे एज्यूम करते कि ये स्मॉल h है और ये जो कॉन की हाइट है इसे हमने कैपिटल H दिया। तो हम ये पूरे फिगर की हाइट फाइंड कर लेंगे। गिवन फॉर द सिलेंडर पार्ट, cylindrical part, height h equal to 3 centimeter, area of the base means pi r square equal to 100 centimeter square, volume of the entire figure equal to 500 centimeter cube. To find total height of the figure, solution: a cylinder and a cone have equal bases, therefore they have equal radius. यहाँ पर देखिए दोनों ही कॉन एंड सिलेंडर दोनों का ही बेस सेम है, तो दोनों की रेडियस भी सेम होगी। ये हमारी रेडियस है कॉन की भी और सिलेंडर की भी। रेडियस ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ कॉन इक्वल टू r. Area of base equal to 100 centimeter square, therefore pi area of base, यहाँ पर बेस क्या है, एक सर्कल है, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. It is denoted by first equation. Let the height of the conical part be h. हमने जो कौन वाला जो पार्ट है, जो कौन है, उसकी हाइट हमने कैपिटल H बानी है. वॉल्यूम ऑफ द entire figure equal to volume of cylinder plus वॉल्यूम ऑफ कॉन. वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. और हमें वॉल्यूम ऑफ द एंटायर फिगर हमें कितना दिया है, 500 सेंटीमीटर क्यूब. तो 500 इक्वल टू में आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 500 इक्वल टू, यहाँ से हम पाई आर स्क्वायर, दोनों साइड से पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर की साइड बचेगा h प्लस 1/3 इंटू कैपिटल H. देयरफॉर 500 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 100 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एंड h स्मॉल h इक्वल टू 3 सेंटीमीटर प्लस 1/3
into h from equation फर्स्ट। Therefore अब यहाँ पर हमें 100 को 500 के डिवाइड में लेकर चले जाऊँगी, तो 500 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 3 प्लस h डिवाइडेड बाय 3 बचेगा, 0 से 0 कैंसल। Therefore 5 इक्वल टू 3 प्लस h डिवाइडेड बाय 3। Therefore यहाँ पर हमारे पास h डिवाइडेड बाय 3 है इक्वल टू 3 प्लस में है इसके, हम इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 5 माइनस 3, तो हमारे पास वैल्यू आई है h डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 5 माइनस 3। यहाँ h बाय 3 इक्वल टू 5 माइनस 3 आया था, मीन्स h बाय 3 इक्वल टू 2 लिख सकती हूँ मैं। Therefore h by 3 equal to 2। Therefore h equal to 2 into 3, ये 3 को इधर मल्टीप्लाई में लेकर चलेगा तो हमारे पास h की वैल्यू आ गई है 6 सेंटीमीटर। Therefore height of conical part h equal to 6 centimeter। Total height of the figure equal to h plus h। h की वैल्यू हमारे पास 3 एंड कैपिटल H इक्वल टू 6, 3 प्लस 6 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। Therefore the total height of the figure is 9 centimeter। Question number 8. In the given figure, a toy made from a hemisphere a cylinder and a cone is shown। Find the total area of the toy। थ्री सेंटीमीटर and ये 4 centimeter। Given for the conical part, height h equal to 4 centimeter and radius r equal to 3 centimeter। For the cylindrical part, height h
इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, रेडियस r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, for the hemisphere, part, radius r equal to 3 centimeter. To find total area of the toy. Solution. अब हमें यहाँ पर टोटल एरिया ऑफ टॉय फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम कौन का एरिया फाइंड कर लेंगे, देन सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर, तीनों का हमें एरिया फाइंड करना होगा। तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल एरिया ऑफ टॉय मिल जाएगा। लेकिन कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, तो हमारे पास यहाँ पर एल तो दी हुई है नहीं, हमें सिर्फ यहाँ पर हाइट एंड रेडियस दिया हुआ, एच और आर दिया हुआ है, तो हमें एल फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। स्लैंट हाइट ऑफ कॉन मीन्स एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एच की वैल्यू हमारे पास 4 एंड 3 की वैल्यू है 3, आर की वैल्यू है 3, इक्वल टू 4 स्क्वायर मीन्स 16 प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 9 इक्वल टू 16 प्लस 9 इक्वल टू रूट 25 इक्वल टू 5 स्क्वायर, रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल, 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो स्लैंट हाइट मीन्स एल इक्वल टू हमारे पास आ गई है 5 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर कौन का एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे। देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया of cone equal to pi r l equal to pi into r, r equal to 3 into l, l equal to 5 equal to 5 3 जा 15 pi सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल पार्ट का एरिया फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया curved surface area of cylinder equal to 2 pi r h। सिलेंड्रिकल के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, तो हमें इसमें वैल्यू रखना था 2 इंटू पाई इंटू आर, आर इक्वल टू 3 इंटू एच, एच की वैल्यू थी हमारे पास 40 इक्वल टू 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 0 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख के उसकी वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में हमने कौन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा लिया, सिलेंडर का लगा लिया। अब बस हमें इस हेमिस्फीयर का लगाना है, तो हेमिस्फीयर के लिए हमें रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू पाई स्क्वायर 3 स्क्वायर मीन्स 9 इक्वल टू 9 2 जा 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय फाइंड करना है, तो हम हेमिस्फीयर, सिलेंडर एंड कॉन तीनों के एरिया को ऐड करेंगे। देयरफॉर टोटल एरिया
of the toy equal to curved surface area of cone plus curved surface area of cylinder plus curved surface area of hemisphere. Curved surface area of हेमिस्फेयर इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन की वैल्यू थी 15 पाई एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की वैल्यू थी 240 पाई प्लस 240 पाई प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर की वैल्यू है 18 पाई इक्वल टू 15 प्लस 240 प्लस 18 इक्वल टू 273 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. Therefore, total surface area of the toy is 273 pi centimeter square. Answer. Question number 9. In the figure, a cylindrical wrapper of flat tablets is shown. The radius of a tablet is 7 mm and its thickness is 5 millimeter. How many such tablets are wrapped in the wrapper? Given diagram, चौदह मिलीमीटर and 10 centimeter. Given for the cylindrical tablet, radius r equal to 7 millimeter, thickness equal to height h equal to 5 millimeter, for the cylindrical wrapper
diameter d equal to 14 millimeter, height h equal to 10 centimeter. To find number of tablets that can be wrapped. सॉल्यूशन, यहाँ हमें डायग्राम में डायमीटर ऑफ रेपर हमें 14 मिलीमीटर दिया हुआ है, लेकिन हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए हम रेडियस का फॉर्मूला लगा के रेडियस फाइंड कर लेंगे. रेडियस ऑफ रेपर आर इक्वल टू डी बाय 2, डायमीटर बाय 2, डी इक्वल टू 14 बाय 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 इक्वल टू 7 millimeter. Height of the wrapper h equal to 10 सेंटीमीटर इक्वल टू, हमें यहाँ पर सारी वैल्यू की यूनिट मिलीमीटर में दी हुई है, सिर्फ यहाँ पर हमें जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसे हमें पहले मिलीमीटर में चेंज करना होगा. तो मिलीमीटर में चेंज करने के लिए हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 100 मिलीमीटर. वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंड्रिकल पेपर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू पाई आर इक्वल टू 7 स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 100 इक्वल टू 7 स्क्वायर मीन्स 49 इंटू 100 मीन्स 1900 पाई मिलीमीटर क्यूब. Volume of cylindrical table tablet equal to pi r square h equal to pi r square means 7 square into h equal to 5. 7 square means 49 into 5 equal to 245 pi millimeter cube. Now number of tablets that can be wrapped equal to volume of cylindrical wrapper divided by volume of cylindrical tablet. Equal to volume of cylindrical wrapper equal to 4900 pi divided by volume of cylindrical tablet equal to 245 pi. Pi से pi cancel, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 0 0, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 0 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 and 0 equal to 20. Therefore 20
tablets can be wrapped in the wrapper. Answer. Question number 10. The given figure shows a toy. Its lower part is a hemisphere. And the upper part is a cone. Find the volume and the surface area of the toy from the measures shown in the figure. Pi equal to 3.14. Given for the conical part, height h equal to 4 cm, radius r equal to 3 cm. For the hemisphere, radius r equal to 3 cm. To find volume and surface area of the toy. Diagram. Height 4 cm and radius 3 cm. सॉल्यूशन. अब हमें वॉल्यूम ऑफ कॉन एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन फाइंड करना है. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल. लेकिन यहाँ पर हमें कॉन के लिए सिर्फ हाइट और रेडियस दिया हुआ है, हमें एल फाइंड करना होगा. तो सबसे पहले हम स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लगा लेते हैं.
Slant height of cone L equal to root r square plus h square equal to r square means 3 square plus h की वैल्यू हमारे पास 4 means 4 square equal to 3 square means 9, 4 square 16 equal to root 25 equal to 5 square 25 को हम लिख सकते हैं 5 square, तो स्क्वायर से रूट कैंसल इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास L की वैल्यू आ गई है 5 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करेंगे, सबसे पहले कौन के लिए फाइंड कर लेते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 इंटू पाई एज इट इज इंटू आर स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 4 इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इंटू 3 इंटू 3 स्क्वायर है तो हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं इंटू 4, 3 से 3 कैंसल इक्वल टू 4 3 जा 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हम फाइंड करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन इक्वल टू पाई आर एल इक्वल टू पाई इंटू आर इक्वल टू 3 इंटू एल की वैल्यू हम लेकर आए हैं 5, तो 5 3 जा 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने कॉन के लिए वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया दोनों फाइंड कर लिया। अब हमें हेमिस्फेयर के लिए फाइंड करना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 2/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब मीन्स 3 क्यूब इक्वल टू 2/3 इंटू पाई इंटू 3 क्यूब है तो हम यहाँ पे 3 इंटू 3 लिख सकती हूँ। 3 से 3 कैंसल इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। कर्व सरफेस एरिया of hemisphere equal to 2 pi r square equal to 2 into pi into r square means 3 square equal to 3 square means 9, 9 2 जा 18 pi सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमें फाइंड करना था वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। पूरे टॉय का हमें वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम पूरे टॉय का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ टॉय इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। देन उसके बाद हम सरफेस एरिया को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ टॉय भी आ जाएगा। नाउ वॉल्यूम ऑफ द टॉय इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। यह हमने वॉल्यूम ऑफ कॉन की वैल्यू फाइंड की थी 12 पाई एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर की वैल्यू 18 पाई सॉल्व की थी। तो बस हमें 12 पाई प्लस 18 पाई वैल्यू रखना है इक्वल टू 12 पाई प्लस 18 पाई इक्वल टू 30 पाई इक्वल टू 30 इंटू 3.14 इक्वल टू 30 इंटू 3.14 इक्वल टू 94.20 सेंटीमीटर क्यूब। हमने यहाँ पर पाई की वैल्यू लास्ट में इसलिए रखी है क्योंकि अगर हम पाई की वैल्यू स्टार्टिंग में रखते तो हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाता।
हमें बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता, इसलिए हमने स्टार्टिंग में सिर्फ पाई लेकर आए हैं, लास्ट में आंसर में हमने पाई की वैल्यू रख के डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर लेकर आ गए हैं। अब हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ टॉय भी। तो ऑल्सो सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन इक्वल टू 15 पाई एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 18 पाई है। तो हमें क्या लिखना है, 15 पाई प्लस 18 पाई इक्वल टू 15 पाई प्लस 18 पाई इक्वल टू 15 प्लस 18 इक्वल टू 33 पाई इक्वल टू 33 इंटू पाई इक्वल टू 3.14 इक्वल टू 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। Therefore, the volume and surface area of the toy are 94.20 centimeter cube and 103.62 centimeter square respectively. Question number 11. Find the surface area and the volume of a baseball shown in the figure. Given for the spherical ball diameter d equal to 42 सेंटीमीटर, हमें यहाँ पर एक स्फेरिकल बॉल दिया हुआ है जिसका डायमीटर 42 सेंटीमीटर है। तो अब हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। टू फाइंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ बेसबॉल, हमें यहाँ पर सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले रेडियस फाइंड करना होगा, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमें इसके लिए आर की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं। रेडियस आर इक्वल टू डी बाय 2। यह हमारे पास डी इक्वल टू है 42 सेंटीमीटर। तो डी इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर। अब हम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगा के उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमें सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यू रखना है और मल्टीप्लाई करना है, इससे हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आ जाएगा इक्वल टू 4
into pi equal to 3.14 into r इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, r स्क्वेयर है तो यहाँ पर 21 स्क्वेयर लिख देंगे, इक्वल टू 4 इंटू 3.14 इंटू 21 स्क्वेयर है तो यहाँ पर लिख सकती हूँ 21 इंटू 21। अब सिर्फ हमें यहाँ पर इस नंबर का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वैल्यू आई है 5538.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5538.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें इसमें सिर्फ वैल्यू रखना है, हमारा आंसर आ जाएगा 4/3 इंटू पाई इक्वल टू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर क्यूब मीन्स 21 क्यूब इक्वल टू 4/3 इंटू 3.14 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 इक्वल टू 4 इंटू 3.14 इंटू 7 इंटू 21 इंटू 21। अब हमें इन सब का मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर आया है 38,772.72 सेंटीमीटर क्यूब। Therefore, the surface area and the volume of the page wall are 5538.96 centimeter square and 38,772.72 centimeter cube respectively. Question number 12. As shown in the figure, a cylindrical glass contains water, a metal sphere of diameter 2 centimeter is immersed in it. Find the volume of the water. थर्टी सेंटीमीटर। Given for the metal sphere
यहाँ पे देखिए हमें एक सिलेंडर साइज की ग्लास दी हुई है जिसमें वाटर भरा हुआ है 30 सेंटीमीटर तक। इस ग्लास में हमने एक स्पेयर डाला है। तो हमें फाइंड करना है मीटर स्पेयर के लिए हमारे पास डायमीटर क्या दिया हुआ है, डायमीटर d इक्वल टू 2 सेंटीमीटर फॉर द सिलेंड्रिकल ग्लास। diameter d equal to 14 centimeter, height of water in the glass h equal to 30 centimeter. To find volume of water in the glass. सॉल्यूशन, हमें यहाँ पर ग्लास और वाटर दोनों के लिए ही रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम एज्यूम करते हैं लेट द रेडियाई of the sphere and glass be R and R respectively। हमें यहाँ पर स्फीयर के लिए डायमीटर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर अगर रेडियस फाइंड करते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू d बाई 2। d की वैल्यू हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रेडियस स्फीयर आ गई है 1 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास। देयरफॉर radius of glass R equal to d by 2 equal to d equal to 14 divided by 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 equal to 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कैपिटल R मीन्स रेडियस ऑफ ग्लास, R की वैल्यू आ गई है 7 सेंटीमीटर। नाउ volume of sphere equal to 4 by 3 pi r cube equal to 4 by 3 into pi into r cube। r cube की हमारे पास वैल्यू है 1 क्यूब, r इक्वल टू 1। तो 1 क्यूब इक्वल टू 1 क्यूब 1 हो जाएगा। तो 4 by 3 इंटू 1 4 by 3 ही आएगा, 4 by 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। Then volume of water with sphere in it equal to pi r square h equal to pi into r, r equal to 7 means 7 square into h। हमारे पास h की वैल्यू है 30 इक्वल टू 7 स्क्वायर मीन्स 49, 49 इंटू 30 इक्वल टू 1470 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें फाइंड करना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द ग्लास, ग्लास में हमारे पास कितना पानी है, पानी का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ स्पेयर इन 8 माइनस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर।
क्योंकि जब हमने ग्लास में एक स्फीयर डाला था तो उससे हमारा पानी का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, तो हमने बढ़ा हुआ लेवल नहीं चाहिए हम, क्योंकि एक्चुअल में जब पहले ग्लास में पानी था तो वो कम लेवल में था। जब हम किसी भी चीज़ में कुछ डालते हैं तो उसका लेवल ऊपर बढ़ता जाता है। तो वैसे जब हमने स्फीयर डाला, मतलब एक गोला डाला था, तो उसका लेवल थोड़ा बढ़ गया था। कितना लेवल बढ़ा था वो हमें नहीं मालूम था। इसके लिए हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड किया, मतलब कितना लेवल बढ़ा वो हमें मालूम पड़ गया। अब तो इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक्चुअल लेवल क्या है वो मालूम पड़ जाएगी। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर in the glass equal to volume of water with sphere in it minus volume of sphere equal to volume of water with sphere in it equal to 1470 pi minus volume of sphere equal to 4/3 pi। अब हम यहाँ पे इसे सॉल्व करने के लिए, नीचे कुछ नहीं है तो हम डिनोमिनेटर में 1 लिख लेते हैं। अब 3 × 1470 pi माइनस 4 × 1 डिवाइडेड बाय 3 × 1 इक्वल टू 3 × 1470 1470 इक्वल टू 4410 पाई माइनस 4 × 1 4 डिवाइडेड बाय 3 × 1 3 4 पाई इक्वल टू 4410 माइनस 4 इक्वल टू 4406 डिवाइडेड बाय 3 पाई इक्वल टू, अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1468.67 पाई सेंटीमीटर क्यूब। Therefore, the volume of the water in the glass is 1468.67 pi centimeter cube. Answer. Thank you. If you like the video, please press the bell icon.